زیادہ جس کو طاقتور سمجھتا ہے اسے بڑا مان لیتا ہے. جب تک آپ ایسے ایسے نہ کریں گے نا تو مجھے لگے گا کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ہاں تو ایسے ایسے کریے آپ, ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن وہ پھر مجھے لگتا رہے گا کہ بات یہاں نہیں جا رہی, یہاں سے جا رہی ہے. تو یہ انسان کی فطرت ہے, اپنے سے طاقتور, اپنے سے بڑا, جس کو دیکھا اسی کو بس طاقتور کو بڑا مان لیا. یہ ہے فطرت انسان. اور یہ طریقہ آج 2023 کا نہیں ہے, یہ طریقہ جو ہے وہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. کیوں کہ جب انسان نے, اللہ کی مخلوق نے ستاروں کو, دیکھیں آنے والے آتے رہیں گے, آپ توجہ رکھیے گا, ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھا تو یہ فطرت انسان یہ نے بڑا مان لیا. اب جب دیکھا کہ سورج میں تپش ہے اور وہ تپش ہمیں کہیں جلا نہ دے, تو سورج کو خدا مان رہے ہیں. انسان نے سورج کو خدا مانا. جب انسان نے سورج کو خدا مانا تو پروردگار نے اپنے نور سے ایسی ہستی کو خلق کیا. مجھے نہیں پتا کہ کون سمجھ رہا ہے کون نہیں سمجھ رہا. وہ وقت با وقت ہستیوں کا تعارف بھی کراتا رہا. ایک لمحہ آیا کہ رات کی تاریکی کو چیر کر چاند کو خدا مان لیا, اس نے اپنے نور سے ایک ہستی کو خلق کر دیا. توجہ, ستاروں کو خدا مانا, اس نے اپنے نور سے پھر ایک ہستی کو خلق کر دیا. تو جب چاند کو خدا مانا تو اس نے اپنے نور سے محمد مصطفیٰ کو بنا دیا. انہوں نے چاند کے محمد نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. زمانے کی سمجھ میں آ گیا کہ چاند خدا نہیں ہو سکتا. زمانے نے پھر سورج کو خدا مانا. پھر مولا کائنات نے سورج کو پلٹا کر بتا دیا کہ سورج خدا نہیں ہو سکتا. زمانے نے ستاروں کو خدا مانا. اب جب ستاروں کو خدا مانا تو پھر پروردگار نے ایسی عظیم ہستی کو خلق کیا کہ اس نے اپنی چوکھٹ پر ستارہ بلا کر بتا دیا کہ ستارہ خدا نہیں ہو سکتا. محمد محمد. لیکن اس نے ایسی ہستی کو خلق کیا کہ اس نے ستارہ ہی چوکھٹ پر بلا لیا. اور ستارہ چوکھٹ پر کب بلایا؟ دیکھیے کب بلایا ستارہ چوکھٹ پر؟ جب بات آئی شادی کی, بات آئی رشتے کی. اور ستارہ چوکھٹ پر بلانے والی وہ ہستی کون ہے؟ سب کو نام پتا ہے. جس نے ستارے کو چوکھٹ پر بلایا اس ہستی کا نام کیا ہے؟ اس ہستی کا نام ہے مادر حسین. اس بی بی کا نام ہے مادر حسین. تو جب شہزادی نے ستارے کو چوکھٹ پر بلا لیا اور زمانے کی سمجھ میں آ گیا کہ جی ستارہ خدا, میں نے پہلے کہا وہ آتے رہیں گے اپنا کام کرتے رہیں گے, آپ توجہ رکھیں, ستارہ جو ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. تو مادر حسین نے ستارے کو چوکھٹ پر بلا کر بتا دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ رشتوں کی وجہ بنیاد پر یہ دنیا چل رہی ہے. اگر دنیا میں رشتے نہ ہو تو پھر دنیا چلے گی کیسے؟ ہے نا, ابھی 2-4 آوازیں آ رہی ہیں, انشاءاللہ سب کی آئیں گی. اگر دنیا چلے گی کیسے اگر اس میں رشتے نہ ہو؟ اس نے حسین رشتے بنائے, کوئی رشتہ باپ کا, کوئی رشتہ بیٹی کا, کوئی رشتہ بھائی کا, کوئی رشتہ بہن کا. اور ان تمام رشتوں میں جو سب سے حسین رشتہ ہے وہ رشتہ ماں کا رشتہ ہے. جو حسین رشتہ ہے وہ تمام رشتوں میں وہ ماں کا رشتہ ہے. اب میں امار چھوڑ کر تو جب تک ویسے بھی نہیں جاؤں گی جب تک سب سبحان اللہ نہ بولیں. سبحان اللہ. شام کی ٹرین ہے, چھوٹ جاتے ہوئے باہر نہیں کر مجلس ہے نا. تو جب تک سب سبحان اللہ نہیں بولیں گے جب تک تو مجھے اب جانا نہیں ہے. ایک ایک چہرے سے آواز آنی چاہیے. کیوں کہ اس مالکن کی بات ہو رہی ہے جس کے وجود مسعود کی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے. سبحان لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا زہرا, لبیک یا زہرا, لبیک یا زینب, لبیک یا زینب, لبیک یا مہندی, لبیک یا مہندی, نعرہ حیدری یا علی, نعرہ سلوہ, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے حسین رشتہ ماں کا رشتہ. کیوں کہ اگر اس نے ماں کا رشتہ کیوں رکھا, پروردگار باپ کا رشتہ رکھ دیتا. تو جواب آئے گا جب ہم نے دنیا کا نظام ہی ایک عورت کو دنیا کی کنجی یعنی رشتوں کی دے دی. جو رشتوں کی کنجی ہے کس کے ہاتھ میں؟ ایک عورت کے.
मकसद मेरा ये नहीं है कि आप घर जाकर झगड़ा करने लगे। हम सुनकर आए हैं कि औरत की फजीलत क्या है शरीयत में, दीन में। उसने तमाम रिश्तों की कुंजी एक औरत के हाथ में दे दी। क्यों? कि अगर एक औरत न हो तो आप अब्बा नहीं बन सकते। देखिए अब मुस्कुराते आ रही है चेहरे। अगर एक औरत न हो तो आप जो है वो शौहर नहीं बन सकते। अगर एक औरत न हो तो बाप नहीं बन सकते, एक औरत न हो तो भाई नहीं बन सकते, एक औरत न हो तो बेटा नहीं बन सकते। बताइए बन सकते? नहीं। जब तक औरत ना हो तब तक रिश्ते नहीं बन सकते। वजह कि एक मर्द का मर्द से तो निकाह हो नहीं सकता। जाहिर है, ये साइंस थोड़ी है, ये साइंस का दौर नहीं है, ये अहले बैत का, ये कुरान का इंसाफ है, ये कानून कुदरत है कि एक औरत के बगैर जो है वो दुनिया का निजाम नहीं चल सकता। जब तक एक औरत ना हो तब तक दुनिया का निजाम नहीं चल सकता। मर्द रिश्ते बना ही नहीं सकता। मर्द रिश्ते नहीं बना सकता जब तक औरत ना हो। क्यों? कि जब उसने दुनिया में पहली अपनी मखलूक भेजी जनाबे आदम, नस्ल आदम चलाने के लिए एक औरत की जरूरत पड़ी जिसे हव्वा कहते हैं। जो ना बोला उस पर मुझे अफसोस होगा। फिर उसने 1,24,000 अंबिया भेज दिए। जब आखिरी अपना नबी भेजा, अपना रसूल भेजा, अपना हबीब भेजा, यासीन, ताहा, मुदस्सिर, मुजम्मिल, इतने औहदे देकर भेजा। उस रसूल को भी मुबायला के मैदान में एक औरत की फिर जरूरत पड़ी कि दीन की हिफाजत करने के लिए। जब तक बतूल जैसी बेटी ना आ गई, जब तक ज़हरा जैसी, बतूल जैसी बेटी ना आ गई, तो नबियों के सुल्तान को भी अगर दीन की पहचान कराने के लिए, रिसालत की पहचान कराने के लिए फिर भी एक खातून की जरूरत है। अब आगे आ जाए, दीन की यहाँ पर तारुफ हो गया, रिसालत की हिफाजत हो गई। लेकिन उसके बाद जब 61 हिजरी आई और दीन की हिफाजत होगी, कुरान को बचाया जाएगा, दीन को बचाया जाएगा, अल्लाह की आजान को बचाया जाएगा, जब करबला के चमन को सजाया जाएगा, तो हुसैन इब्ने अली ने जब तक करबला के चमन को न सजा सके इमाम, जब तक कि ज़ैनब जैसी बहन इमाम के पास मौजूद है। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद। जितने पाक की अज़मत पर बाबा से बुलंद नारे तलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जज़ाकल्लाह, सलामत रहे, खुदा कोई गम न दे सिवाय हमें मज़लूमे करबला। तो जब तक एक औरत न हो तब तक ये दुनिया का निजाम जो है, मैंने पहले कहा झगड़ा करने वाली बात नहीं। फिर भी मेरी माँ बहनें कहती हैं जी इस्लाम ने हमें दिया क्या है? बुर्का, ये चादर, ये चार दीवारी, ये सारा सब कुछ हमारे ही जिम्मे था। इस्लाम ने हमें दिया क्या? खुदा की कसम, इस्लाम ने हमें वो दिया जो किसी और को नहीं दिया। क्यों? कि इस्लाम ने सबसे बड़ा मर्तबा दिया कि हमें माँ बनाया। नहीं, क्योंकि अगर माँ ना होती तो आज ये हाकिमों की कुर्सी पर इंसाफ करने वाले हाकिम न होते। अगर माँ ना होती तो आज शफा देने वाले डॉक्टर न होते। अपने लिए जब बात हो तब तो खामोशी न बैठते, तो हमारे लिए बात चल रही है। अगर माँ ना होती तो हाकिम न होते, अगर माँ न होती तो मेडिकल की ये कुर्सियों पर हॉस्पिटल में शफा देने वाले ये डॉक्टर न होते। अगर माँ न होती तो हमें इंसाफ दिलाने वाले वकील न होते। और आसान कर दूं, अगर माँ न होती तो नबी न होते, अगर माँ न होती तो रसूल न होते, अगर माँ न होती तो इमाम न होते, अगर माँ न होती तो विलायत भी न होती, अगर माँ न होती तो अज़ादार इमाम मजलूम भी न होते। पता चला कि माँ मोहम्मद व आले मुहम्मद। माँ है तो फिर ये दुनिया का निजाम है। अगर माँ है तो फिर सब है, और माँ नहीं तो कुछ भी नहीं है। माँ का इतना मर्तबा दिया क्योंकि उसने ज़ाहिरी तौर पर एक औरत को 3 नुक्स दिए हैं। नुक्स समझती हैं? ऐब नहीं, ऐब और होते हैं, नुक्स और होता है, ऐब और होता है। 3 नुक्स दिए एक औरत को ज़ाहिरी तौर पर। अगर किसी से इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो ये उसका ऐब नहीं है। क्या है? नुक्स। से हाँ, ऐब और होता है, नुक्स और होता है।
अगर इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही है तो क्या है, नुक्स है। तो ऐसे ही उसने एक औरत को ज़ाहिरी तौर पर 3 क्या दिए, नुक्स दिए। पहला नुक्स क्या दिया, नाकिसुल मीरास है, एक आम औरत जो खाक से बनी हुई है। तवज्जो कीजिएगा, नाकिसुल क्या है, मीरास। जितना हिस्सा शरीयत में एक मर्द का है उतना औरत का। आप तो ऐसे थोड़ा सा घबराए से हैं, ये बात हमारी हो रही है, यानी तो बोलना भी जरूरी है। फिर एक औरत का जितना हिस्सा है मर्द का उससे कई गुना ज्यादा है, नाकिसुल मीरास। दूसरा, नाकिसुल इबादत, पूरा महीना जो है मुसल्ले पर नहीं आ सकता, चंद रोज ऐसे होते हैं जो मुसल्ले से दूरी रहती है। तीसरा है नाकिसुल अक्ल, मशवरा भी नहीं है औरत का। कौन हंसकर सुनेगा कौन बोलकर मुझे नहीं पता। औरत का मशवरा भी नहीं है। उसकी वजह क्या है, इसलिए कि जब कभी भी मशवरा देगी शर वाला देगी, वो अपना बदला ढूंढती है। हाँ, ये औरत की खासियत है। तो इसीलिए शरीयत में मशवरा नहीं है। मशवरा क्यों नहीं है कि जब भी मशवरा देगी, मान लीजिए अगर भाई मशवरा लेने आ जाए तो वो भाभी से अपना बदला ढूंढेगी। गलत तो नहीं कहा, वो ढूंढेगी कि बदला कैसे, क्या मशवरा दिया जाए कि मेरा बदला भी पूरा हो जाए। तो इसलिए जो है वो नाकिसुल अक्ल कहा गया कि इससे मशवरा ना लें। ये है एक आम औरत कि जो नाकिसुल मीरास है, नाकिसुल इबादत है और नाकिसुल अक्ल है। तो ये वो औरतें हैं कि जिन्हें अल्लाह ने खाक से बनाया। अब वो औरत इस कमाल उसके क्या कहने कि जिसकी चौखट पर कुरान सलाम करने आए, जिसकी चौखट पर नबियों का सुल्तान सलाम करने आए, जिसकी चौखट पर सितारा सलामी देने आए, जिसकी चौखट पर कुरान की आयतें सलाम करें, जिसकी चौखट पर फरिश्ते असीर बनकर आए, मिस्कीन बनकर आए, यतीम बनकर आए, तो क्या कहना कमाल शहजादी इस्लाम का कि परवरदिगार ने एक खाक से बनी हुई औरत को नाकिसुल मीरास बनाया। बीबी को न कोई भाई दिया न कोई बहन दी, ताकि नबी की मीरास में कोई ऐरा गैरा शामिल ना हो जाए। फातिमा ज़हरा की अज़मत पर बाबा से बुलंद नारे तलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए ये कमाल दिया है शहजादी कौनैन को, मादर हुसैन को, दुनिया की सबसे बड़ी माँ, सबसे अजीम माँ, कि जिसे न भाई दिया न बहन, ताकि कोई नबी की मीरास में। अब इशारा किया तो जनाब का काम, मैं अंदर वाले जो बैठे हैं उनसे भी बात हो रही है, थोड़ी देर आप भी तवज्जो रखें। तो ये अब बात आती है नाकिसुल इबादत। तो क्या कहने शहजादी कौनैन के, दुनिया में तारीख इस्लाम में ऐसी माँ नहीं, पूरी तारीख में ऐसी माँ नहीं, ऐसी बीवी नहीं, ऐसी बेटी नहीं कि शहजादी कौनैन के क्या कहने कि नाकिसुल अक्ल बनाया एक खाक से बनी औरत को, नाकिसुल इबादत बनाया एक खाक से बनी औरत को। तो क्या कहने उस माँ के सलाम हो हमारा शहजादी कौनैन पर कि जोहर के वक्त 15 रमजान को बेटा दुनिया में आ रहा है और असर के वक्त माँ बेटे के साथ मुसल्ले पर आ रही है। ना तो रोजा टूट रहा है ना मुसल्ला छूट रहा है। बीबी का न रोजा टूट रहा है और ना ही मुसल्ला छूट रहा है। अब बात आ गई नाकिसुल अक्ल की, तो क्या कहने उस माँ के, जो है क्या कहने उस माँ के कि जो जहरा है और उसने जमाने को सानिया जहरा ऐसी बेटी दी, सानिया जहरा ऐसी बेटी दी। सानिया जहरा मैं कहती रहूंगी जब तक आवाजें नहीं आएंगी। सानिया जहरा ऐसी बेटी दी, अगर वो जहरा है तो ज़ैनब सानिया जहरा है। तो क्या कहने उस माँ के जिसकी बेटी सानिया जहरा हो और वो अकीला बनी हाशिम कहलाए। सलवात पढ़ दे जिंदाबाद मुर्दाबाद। तो शहजादी के क्या कहने कि जिसकी बेटी सानिया जहरा हो और अकीला बनी हाशिम हो। क्यों कि इमाम जब 28 रजब को जब मदीने से चले ना, इमाम मजलूम करबला, कुछ 28 रजब ने सुना दिया। जिस वक्त मौला चले तो कुछ मदीने वाले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए और आने के बाद फरमाया कि मौला आप जो है वो कूफा न जाएं,
یہ کوفے والے جو ہیں وفادار نہیں ہیں، نہ آپ کے بھائی کے ساتھ وفا کی ہے نہ بابا کے ساتھ۔ ابھی مجھے 28 رجب نہیں سنانی آپ کو ایک جملہ جو مجھے موضوع کے ساتھ لینا ہے۔ امام نے اس وقت ایک تاریخی جملہ فرمایا، مولا نے فرمایا چونکہ میں امام ہوں اور امامت کو مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب جو سمجھ گئے نا اسے میرا سلام ہے۔ امام نے کیا فرمایا کہ میں امام ہوں اور امام کو مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو وہ امام حسین کیا فرما رہے ہیں 28 رجب کو جب مدینہ چھوڑ رہے کہ امام ہوں، امام کو مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو سلام ہو زینب عالیہ پر، سلام ہو ثانیہ زہرا پر، کیسی بہن امام کو دی پروردگار عالم نے جسے نور سے بنایا، کیسی بیٹی دی شہزادی کو جو ثانیہ زہرا ہے کہ کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام تک جناب زینب کے مشورے کے بغیر امام سجاد ایک موڑ بھی نہیں مڑ رہا ہے۔ یہ اکیلا ہے بنی ہاشم کہ ایک خاتون کو اس نے پروردگار عالم نے یہ منصب اسلام میں دیا کہ اگر عورت چاہے تو عورت کا مرتبہ اتنا ہے کہ سب سے بڑا مرتبہ تو ماں ہے۔ تو جہاں 3 نقص دیے وہیں شہزادی کونین کو یہ کمال دیے، جہاں 3 نقص دے رہا ہے وہیں پر کمال بھی دے رہا ہے۔ لیکن آج کل کے سسٹم میں کہ مرد کہتے ہیں بیچاری عورتیں، بیچاری عورتیں نہیں، بیچارے آپ ہیں۔ عورتیں بیچاری نہیں ہیں، بیچارے تو آپ ہیں، کیونکہ اگر عورتیں نہ ہو تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں، جب تک عورت نہ ہو تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ بیچاری عورتیں 3 جہاں ظاہری طور پر ایک مرد کو مضبوط بنایا نا اللہ نے جسمانی طور پر، تو عورت کو جذباتی طور پر مضبوط بنایا۔ نہ بولے تھوڑا سا مجھے نہیں پتا یہاں کیسے سنا جاتا ہے، لیکن میں نے امن کا نام بہت سنا تھا، جانا ہوا۔ یہ تو آپ بول کر بتائیں گے کہ ہم کیسے سنتے ہیں۔ ہاں، اور یہ اب ایک بات سوچ کر بیٹھیے گا، نہ تو یہاں کوئی حسن پور والا ہے، نہ مونگر والا ہے، نہ کوئی خیر آباد والا ہے، نہ کوئی نوگاواں سادات والا ہے، ہم سب کے سب نجف والے ہیں، کربلا والے ہیں، اور ہمیں بولنا بھی نجف اور کربلا والوں کے لیے ہی ہے۔ سلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کربلا کربلا یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ جی، سلامت رہے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ ہماری سماعت کو بھی قبول کرے پروردگارہ، اور مرحومہ کو شہزادی کونین کے قدموں میں جگہ عنایت فرمائے۔ آمین۔ تجھے واسطہ جناب زینب کا۔ تو دیکھیں یہ پروردگار نے اب بیچاری عورتیں بیچاری نہیں ہیں، 3 فضیلت اللہ نے ایسی دی ہے کہ مرد ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دے تو 3 فضیلتیں نہیں خرید سکتا۔ میں جھانک کر دیکھوں گی یہاں پہ، ہاں کہ یہاں گردنیں ہل رہی ہیں کہ نہیں؟ میں جھانک کر دیکھوں گی جو اندر بیٹھا ہے، تو یہ ہاں ادھر بھی دیکھوں گی ادھر بھی، اور یہاں بھی اب ہر طرف میری نگاہیں رہیں گی، کیونکہ اب مجھے کسی کو بھی میں چاہتی نہیں کہ کوئی زبان خاموش رہ جائے، اور بیوی کے حق میں بولنا تو ویسے بھی واجب ہو جاتا ہے۔ ایک عام سی بات کرو، ابھی اگر باہر خدا نہ کرے جھگڑا ہو جائے تو سب بولیں گے، اچھا یہاں بولتے ہوئے شرم آتی ہے، شرمائے تو وہ کہ جو فرار کا ماننے والا ہو، ہم تو حیدر کرار کے ماننے والے ہیں، حیدر کرار کے ماننے والے ہیں، کیوں کہ موت بھی آئے گی تو جگہ ان کے قدموں میں ملے گی، جو موت کو نہ کڑوا ہونے دیتے ہیں نہ قبر کو اندھیرا ہونے دیتے ہیں، ان کے قدموں میں جائیں گے۔ 3 فضیلت کے مرد ساری دنیا کی دولت بھی دے دیں نہیں خرید سکتے۔ پہلی فضیلت بیٹی باپ کے لیے رحمت، دوسری فضیلت بیوی شوہر کے ایمان کو کامل کرنے والی، تیسری فضیلت ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ کیا ہے؟ جنت۔ یہ 3 فضیلتیں کوئی مرد جو ہے بتائیں خرید لے گا؟ نہیں خرید سکتا۔ یہ منصب، یہ عہدہ تو صرف ایک عورت کو دیا ہے پروردگار نے، مرد خرید ہی نہیں سکتا۔ ہاں تو ایک خاک سے بنی عورت کیا ہے؟ پہلی تو ہے باپ کے لیے رحمت، خاک سے بنی ہوئی باپ کے لیے رحمت۔ 2023 میں ہو گئی زحمت، جہاں اگر آپ کو غلط لگے تو مجھے
रोक सकती हैं आप, ऐसी बात नहीं। आज 2023 में जहमत हो गई। अब रीजन पूछिए वजह क्या है? वजह ये है कि लाइफ का जो एजेंडा है, जिंदगी जीने का जो तरीका और सलीका है, वो ये है कि हम ये सोच कर जी रहे हैं कि आई एम समथिंग। क्या सोच कर जी रहे हैं? चले यहाँ जो दिक्कत है उसकी जगह तो खुद शहजादी देंगे, अभी भूल जाइए वो सब। आई एम क्या? समथिंग। क्या कहते हैं कि मैं कुछ हूँ, और जैसे ही सांसें निकल गई खत्म, कुछ भी नहीं। तो ये लाइफ का जो है स्टाइल हो गया, आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ। ये 2023 में जो जहमत बने बैठे हैं। और दूसरा क्या आता है, अभी माँ ने कुछ कह दिया, बाप ने कुछ कह दिया, तो फौरन क्या आवाज आएगी? डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ बिकॉज दिस इज माई लाइफ। यानी कि मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी न की जाए, ये मेरी जिंदगी है। आपकी जिंदगी कहाँ से आई? जिंदगी है मौत की अमानत, जिंदगी है उधार की। तो आज की बेटियां हो गई है बाप के लिए जहमत, और वो बेटी उस बेटी के क्या कहने, जिसके आपको कहते हैं हम कनीज़े ज़हरा है, हम कनीज़े ज़हरा है, हम कनीज़े ज़हरा है। तो वो बेटी ऐसी रहमत है जो रहमतुल आलमीन के लिए रहमत बनकर आई है कि जनाब ज़हरा रहमतुल लिल आलमीन के लिए रहमत बनकर आई। अब दूसरी बात आ जाती है शौहर के ईमान को कामिल। 2023 वाली बीवियां, एक बीवी की, एक खातून की जिम्मेदारी है कि जब शौहर शाम को ऑफिस से आए, घर से आए, बाहर से आए, मजदूरी से आए, जहां से भी आए, शाम को कुछ ला कर दे। तो शौहर के ईमान के कामिल को करने वाली बीवी क्यों होती है? कि उसकी जिम्मेदारी होती है कि शौहर से पूछे कि हुजूर हराम का तो नहीं लाए। ये नस्लें क्यों खराब हो रही हैं आज? शौहर से जिम्मेदारी है, आप पूछिए कि ये जो आप कमाई लाए हैं, ये हराम की लाए हैं या हलाल की लाए हैं? लेकिन आज तो नौबत ही नहीं आती, बीवी खुद कहती है लाइए। ये नस्लें क्यों खराब हो रही हैं आज? बीवी कहती है शौहर से क्यों लाइए, कहीं से भी लाइए। अब वो कहते हैं कि बेगम जितनी ताकत थी उतना तो ले आए। उन्होंने कहा इतने में क्या होगा, 4000 का तो सूट आ जाता है। फिर उतने ब्यूटी पार्लर को चले जाते हैं। ये सारी आंखें आप कीजिए, किसी ने नहीं रोका। उतना कीजिए जितना शौहर की कमाई हो, उतना कीजिए। ऐसे ही थोड़ी बुजुर्गों ने मिसाल दी कि उतने पाँव फैलाओ जितनी चादर हो। तो ये सब हालात जब हो गए 2023 की, जब बीवियां ऐसी हो गई कि वो पूछना तो दूर की बात, उनसे कहती है कहीं से भी लाइए, मुझे घर डेकोरेट करना है, मुझे घर सजाना है, सोफा सेट लगाना है, मुझे तो नया बेड लाना है, मुझे बड़ा फ्रिज लेना है। तो कम से कम ये सोच कर तो जी लीजिए कि जब खबर के अंदर जाएंगी, मुस्कुरा रहे हैं, कहा जाए हाँ बेशक बेशक, जब खबर के अंदर जाएंगी तो ये बड़ा वाला फ्रिज कहाँ छोड़ कर जाएंगी? ये कुछ भी साथ में नहीं जाएगा, क्योंकि खुद मेरे जमाने के छठे अली का फरमान है, देखिए एक थोड़ी सी आपको जहमत होगी, एक और सलवार पढ़ दे, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। साइड से बना दे तो जिसको अंदर आना होगा वो आ जाएगा। अब तवज्जो रखिए, तो 2023 में हुजूर लाइए तो खुद सादिक आले मोहम्मद फरमा रहे हैं, तवज्जो, देखिए मैं तवज्जो की तलबगार हूँ, गर्दन न फेरिए आप ना। हम नमाज में सलाम फेरते हैं, गर्दन नहीं फेरते। देखिए जो समझ गया वो समझ गया। हम सलाम में भी सलाम फेरते हैं, नमाज में गर्दन, तो ये भी तो इबादत है, इसमें भी गर्दन न फेरिए। सीधा सुनिए, क्योंकि इससे बड़ी इबादत नहीं है। साले सवाब का जो असली जरिया है वो जिक्र हुसैन, जिक्र आले मोहम्मद है। तो बात आ गई अब जो ईमान की, तो ईमान की बात आ रही है कि लाइए कहीं से भी तो खबर के अंदर सादिक आले मोहम्मद का फरमान। मौला फरमाते हैं कि हमें हैरानी उन पर होती है जो दुनियावी सामान जमा करते हैं, आखिरत वाला नहीं करते।
दुनियावी सामान सब जानती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। दुनियावी सामान जमा करते हैं, आखिरत वाला नहीं करते। तो मौला आखिरत वाला सामान कौन सा है, दुनियावी कौन सा है? होगा जो इस फिक्र में चले गए हमें फ्रिज बेड ये सब जमा करना है, उन्होंने दुनियावी सामान जमा किया। जिन्हें ये फिक्र रही कि हमें रोजा जमा करना है, हमें नमाज जमा करनी है, देखिए हमें जो है वो इबादत है खुदा जमा करनी है, बुजुर्गों के साथ अदब से पेश आना है, हमें यतीमों की मदद करनी है, मिस्कीनों के सर पर हमें हाथ रखना है, वो आखिरत वाला सामान आखिरत वाला सामान है। तो आज जो है वो बीवी हो गई जहमत, बेटी भी हो गई जहमत। अब तीसरी बात आ जाती है माँ, और माँ के कदमों के नीचे जन्नत। आजकल माँ हो गई है पुरानी। अब बुजुर्ग तो बोल ही लेते, कोई बोले ना बोले, बुजुर्ग तो बोलने, हमें भी वही आना है। आज अम्मा तो हो गई है पुरानी, अब अम्मा को बैठा दिया है कोने में। अब बात आई कुछ खरीदा, अम्मा क्या बताएंगे, अम्मा को क्या पता, अम्मा पुराने दौर की। कोई मतलब अम्मा क्या जानती है जो हम जानते हो अम्मा नहीं जानती। तो माँ के न मशवरे की जरूरत न माँ की जरूरत। अम्मा क्या बताएंगी, अम्मा क्या समझाएंगी, अम्मा की अब जरूरत नहीं, अम्मा हो गई पुरानी। तो आपको पता ही नहीं है जब दुनिया में आए थे आप कुछ भी नहीं जानते थे। तवज्जो जो ना बोला मुझ पर अफसोस होगा। जब आप दुनिया में आए थे कुछ भी नहीं जानते थे। ये दुनिया में लाने वाली माँ थी, अल्लाह एक बताने वाली माँ थी, पंचतन 5 बताने वाली माँ थी, मासूम 14 बताने वाली माँ थी, इमाम 12 बताने वाली माँ थी, शहीद 72 बताने वाली माँ थी, नबी 1,24,000 बताने वाली माँ थी, सीने पर मातम हुसैन कराने वाली माँ थी। तो जिस माँ को 2023 में ये कहकर बैठा दिया गया माँ कुछ नहीं जानती, जितना माँ जानती है उतना आप नहीं जानते। जो माँ जानती है वो आप नहीं जानते। और क्या कहने उस बेटी के जो रहमतुल आलमीन के लिए रहमत बनकर आए, क्या कहने उस बीवी के जो कुल्ले ईमान के ईमान को मुहाफिज कराने वाली हो, तो क्या कहने उस माँ के जिसके कदमों के नीचे जन्नत के जवानों के सरदारों की जन्नत हो। क्या कहने उस शहजादी के। और कभी कभी देखिए दुनिया का सबसे अजीम रिश्ता जो है वो माँ का रिश्ता। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ घरों में कुछ नाअहल ऐसी आ जाती हैं। नाअहल समझती है, कुछ नाअहल ऐसी खुद ही लाते हैं हम। अब तो समझ गए। कभी कभी कुछ नाअहल ऐसी आ जाती हैं कि उन्हें माँ तो चाहिए नहीं बेटा चाहिए। अब कुछ तो पड़ जाएंगे खामोश। नौजवान तबका है वो तो पड़ेगा खामोश। मुझे पता है अभी हालात ये होंगे, कुछ बोलेंगे कुछ मुस्कुराएंगे, लेकिन बात हक भी है सच भी है। जैसे मौत के 2 जायके हैं, कड़वा और मीठा, वैसे ही सच के भी 2 जायके हैं, कड़वा और मीठा। जब मोमिन मरता है तो मौत मीठी होती है, जब मुनाफिक मरता है तो मौत कड़वी होती है। जब मोमिन सच को सुनता है तो जायका मीठा लगता है, जब मुनाफिक सच सुनता है तो जायका कड़वा लगता है। कभी कभी कुछ नाअहल ऐसी घर में आ जाती है, उन्हें माँ नहीं चाहिए होती बेटा, ऐसे तो करते हैं। उन्हें क्या चाहिए होता, क्यों कि बस मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरा शौहर, मेरा घर। आजकल जो है सबको चाहिए अलग घर जी। और नहीं मिलता तो अम्मी समझाती रहती है फोन पर, कुछ दिनों की बात है अलग हो जाएगा, कुछ दिनों की बात है अलग। अब जितने दिन जिंदा बैठी है, कितने दिन, ये बेटियों को माए समझाती है, कितने दिन की जिंदगी है, कर लेने दे जो कर रही है, उसके बाद सब तेरा। अगर ये मेंटलिटी लेकर किसी के घर में जाओगे तो बताइए सुकून कहाँ से होगा। जिस घर में आप ये सोच लेकर जाएं, ये मेंटलिटी लेकर जाएं, तो फिर आपको तो वही सोच सताती रहेगी, कब ये जाएंगी कब मेरा होगा। और आपको ये पता ही नहीं है कि आने वाले कल में इनकी जगह पर आप बैठी होंगी, कोई और दूसरी आकर आपको सोचेगी ये कब जाएंगी कब मेरा होगा।
अगर इस सोच के साथ रहने लग जाए तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। अब देखिए, मैं चेहरे देखूंगी, चेहरे मैं चेहरे देखूंगी, ये चेहरे क्या कह रहे हैं। तो यकीन करें आप, कभी कभी कुछ नाअहल ऐसी आ जाती हैं, कुछ नाअहल, आपने गौर नहीं किया मैंने कहा क्या, कुछ नाअहल ऐसी, अम्मा नहीं चाहिए, बेटा चाहिए, बेटे का हिस्सा भी चाहिए, माल अम्मा का, हिस्सा बेटे का। एक जगह आ गई थी, उन्होंने कहा अम्मा बस अब जो है वो हमें सेपरेट घर चाहिए, अब आप कौन हम कौन। माँ बड़ी समझदार थी, उन्होंने कहा घर भी ले जाओ, बेटा भी ले जाओ। तो ऐसी कंडीशन में दुल्हन भी खुश और अम्मा भी। जब ना लड़ाई ना झगड़ा और जो चाहिए था वो मिल रहा हो। लेकिन यकीन करें आप, माँ बड़ी समझदार थी। बेटे लेटे हुए थे, अम्मा गई, अम्मा ने जाकर एक जग पानी भरा और आने के बाद बेटे से कहा बेटा थोड़ी सी जगह बनाओ। उन्होंने सोचा अम्मा भी लेटेंगी बराबर में, लेकिन अम्मा ने क्या किया, पूरा जग भरकर पानी डाल दिया बिस्तर पर और अब बेटे से कहा सो जाओ। तो उसने कहा अम्मा अब कैसे सोऊंगा, सारा तो बिस्तर गीला कर दिया। खुदा की कसम जो समझ रहा है उसे करोड़ों सलाम है मिंबर से। ये जो माँ के लिए नहीं बोला वो किसी के लिए नहीं बोल सकता। तो कहा कि अम्मा मैं कैसे सो जाऊं, सारा तो बिस्तर गीला कर दिया। तो माँ ने कहा बेटा बस चंद मिनट नहीं सो पा रहे, मैं तो सारी सारी रात गीले बिस्तर पर। सलमान पढ़ने पर तो इसीलिए जहाँ उसने मर्दों में नमूने अमल किरदार के लिए 12 मर्द बनाकर भेजे, 12 मर्दों का किरदार बनाया, उसी वजह से क्या कहने मेरी उस शहजादी के कि अगर औरतों के लिए नमूने अमल बनाया तो तन्हा ज़हरा को बनाकर भेजा। इन मर्दों में मर्दों में 11, 12 मर्दों में 12 और औरतों में तन्हा जनाबे ज़हरा नमूने अमल बनाकर भेज दिया। दुनिया की सबसे बड़ी माँ का नाम है ज़हरा। क्यों? कि एक आम औरत की कोई अपनी पहचान नहीं होती। बताइए किसी की हो तो अपनी कोई जाति पहचान है? नहीं। अब कोई कोई खास होते हैं जिनकी पहचान हो भी जाती है, लेकिन वो बहुत कम होता है। औरतों की अपनी कोई पहचान नहीं है। जब तक माँ के घर है तो क्या कहलाती है, फला की बेटी। ठीक है, ऐसा लग रहा है ये 2-4 मेरी बैठी हैं, बड़े बैठे हैं, क्योंकि मैंने पैसे देकर बैठा दिया। बस यही बोलते रहेंगे। बेशक नहीं, सब बोलिए, कोशिश करें कि सबकी आवाज आए। बीबी को ये 12 मर्दों और इधर शहजादी, अपनी जाति कोई पहचान नहीं। जब तक माँ के घर है फला की बेटी, निका नामे पे दस्तखत हुए तो फला की कौन हो गई, बीवी। हाँ जी, दस्तखत करती बीवी, उधर फला की बेटी, इधर फला की बीवी। अपनी कोई जाति पहचान ही नहीं है। क्या कहने शहजादी कौनैन के, क्या कहने मादर हुसैन के। अगर पहचान भी है मेरी शहजादी की, तवज्जो तवज्जो, अगर पहचान भी है मेरी शहजादी की तो खातून जन्नत के नाम से पहचान। चक्की जलाए जिसका फरिश्ता, ज़हरा 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 ज़हरा, चक्की जलाए जिसका फरिश्ता, ज़हरा 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 ज़हरा, जिसका अर्श से आया रिश्ता, ज़हरा 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 ज़हरा, जिसका अर्श से आया रिश्ता, ज़हरा 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 ज़हरा, हैदरी या अली, बीबी फातिमा ज़हरा की अज़मत पर एक बुलंद तरीन सलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जज़ाकल्लाह, सलामत रहे, खुदा कोई गम ना दे सिवाय गम मजलूम। देखिए, इसलिए अपनी कोई पहचान नहीं, लेकिन शहजादी कौनैन की अगर उसने पहचान भी दी तो खातून जन्नत। एक आम औरत का कोई घर भी नहीं होता, नहीं है। जब तक माँ बाप के घर है, माँ बाप के घर, शौहर के घर आई, लेकिन नामे पे दस्तखत करने के बाद तो किसका, शौहर के घर कोई बात आ गई तो कहता है जाओ माँ के घर। अब माँ बाप के कुछ हो जाए तो कहते हैं जाओ शौहर के घर। एक औरत का कोई अपना जाति घर भी नहीं है होता। और जाति अगर मकान की बात आए तो खबर है एक औरत का जाति मकान, जो अपनी उसकी मिल्कियत है, जिसमें किसी दूसरे की पहचान नहीं जुड़ेगी, उसकी अपनी पहचान होगी, जिसे कहते हैं खबर।
تو اگر ایک عورت کو اس نے خاک سے بنائی ہوئی عورت کا کوئی اپنا ذاتی مکان نہیں دیا تو کیا کہنے شہزادی کونین کے. اب ایسا جملہ ہے کہ پوری تقریر ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف. کیا کہنے شہزادی کونین کے ایسے مکان کی مالکن بنایا جس میں جانے کی خواہش ہندو بھی کرتے ہیں, سکھ بھی کرتے ہیں, عیسائی بھی کرتے ہیں, مسلمان بھی کرتے ہیں, دشمن بھی کرتے ہیں, دوست بھی کرتے ہیں. اگر مکان کی مالکن بھی بنایا تو جنت کی مالکن بنایا. سلوات پڑھنے پر محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. اگر مالکن بھی بنا رہا ہے پروردگار تو جنت کی مالکن بنا رہا ہے. جنت کی, نے جنت کی مالکن بنایا. کیونکہ ہمارے یہاں ایک ماں ہے جو دنیا میں اندر جو یونیورسٹی چلاتی ہے نا گھر کی, ایک عورت پر 7 نسلوں کی ذمہ داری, 2 خاندانوں کی عزت کی ذمہ داری. ابھی تک تو جو باتیں ہوتی رہی ہیں چند جملے بی بی کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں مجھے. 2 خاندانوں کی ذمہ داری, 7 نسلوں کی ضامن کون ہے؟ ایک عورت ہے. یہ بڑا مرتبہ دیا ہے اس نے. ایک عورت بنایا, ماں بنایا, بیٹی بنایا, بیوی بنایا. بس جتنا وقت مجھے دیا گیا تھا اتنے میں بات ہوگی انشاءاللہ. تو بیوی ایک ماں اس نے ایسی عظیم ہستی بنا کر بھیجا کہ ایک ماں جو ہے وہ جیسی اندر کی دنیا بناتی ہے ویسی ہی اولاد باہر جا کر چلاتی ہے. یہ تاریخ کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ جیسی ماں ہوگی ویسی, بولیے, اولاد ہوگی. جیسی ماں ہوگی ویسی اولاد ہوگی. بول ہی نہیں رہا. چائے تو پی کر آئے ہوں تو پھر تو بول لیجیے ماہ رمضان بھی چلا گیا, روزے سے بھی نہیں ہے. کہ جیسی ماں ہوگی ویسی بے اولاد ہوگی. ہاں, جیسی ماں ہوگی ویسی اولاد ہوگی. کیوں کہ پوری دنیا میں آل ورلڈ 2180 زبانیں بولی جاتی ہیں. 2180 زبانیں. اور یہ تاریخ کی سب سے بڑی حقیقت ہے دنیا کے پہلے روز سے لے کر آج تک کہ جیسی ماں ہوگی ویسی اولاد ہوگی. جیسی ماں ویسی بیٹی ہوگی, جیسی ماں ہوگی ویسی اولاد ہوگی. تاریخ کی سب سے بڑی حقیقت. اور اس پورے ورلڈ میں آل ورلڈ 2180 زبانیں بولی جاتی ہیں. اور 2180 زبانوں میں جس ہستی کو سب سے احترام کے ساتھ پکارا جاتا ہے اس ہستی کو ماں کہتے ہیں. 2180 زبانوں میں جس ہستی کو سب سے زیادہ ماں کو عظمت کے ساتھ پکارا جاتا ہے, عزت کے ساتھ پکارا جاتا ہے. اور مجھے کہہ لینے دے پھر کہ جیسی ماں ہوگی ویسی بیٹی ہوگی, جیسی ماں ہوگی ویسی اولاد. بولیے بولیے. ساس بہو کا جھگڑا دیکھ لیں آپ. جب جھگڑا ہوتا ہے تو ادھر سے بھی بات آتی ہے کہ تم ایسی کیوں نہیں ہوگی, تمہاری تو ماں ایسی تھی. یہ اسلام بھی کہہ رہا ہے, یہ معاشرہ بھی کہہ رہا ہے, یہ قانون بھی ہمارے رولز لائف کے کہہ رہے ہیں کہ جیسی ماں ہوگی ویسی اولاد ہوگی. تو پھر میں یوں نہ کہہ دوں کہ اگر ماں فاطمہ ہو, دادی بھی فاطمہ ہو, ماں بھی فاطمہ ہو, دادی بھی فاطمہ ہو, تو بیٹا یا تو حسن ہوگا یا پھر حسین ہوگا. اور ماں ہندہ ہو, میسونہ ہو, بیٹا معاویہ ہوگا یا پھر یزید ہوگا. زندہ باد, زندہ باد, مردہ باد. ہوگی یا پھر کلثوم ہوگی. اور ماں اگر ہندو ہو, میسونہ ہو, تو بیٹا معاویہ یا پھر آپ تو ڈر گئے نا لعنتی ابن لعنت, بیٹا معاویہ ہوگا یا پھر یزید ہوگا. جیسی ماں ویسی بیٹی, جیسی ماں ویسی اولاد. کیوں کہ جب اس نے خانہ کعبہ کو دنیا کے سینٹر میں بنایا اور اس کا دل چاہا کہ اس میں سے جو دنیا کے بڑے بڑے بنے ہیں, جیسے ہم بڑے بنا لیتے ہیں, بات وہیں سے شروع ہوتی وہیں ختم ہو جائے. دنیا کے بڑے بڑے جو بنائے ہیں ان کو باہر نکل جائے اور یہ خانہ کعبہ اب لائق عبادت بن جائے. تو اس نے 13 رجب کو کسی ماں کو آواز دی. نہیں, میں 13 رجب نہیں سناؤں گی. 13 رجب تو وہاں سنائی جاتی ہے جہاں سننے کے بعد مردے بھی جاگ جائیں. 13 رجب سنا دی جاتی ہے تو شجرے پتہ چل جاتے ہیں, چہرے بتا دیتے ہیں, اور شجروں کا بھی پتہ چل جاتا ہے چہروں سے. اللہم
आइए। और इस घर को जो है ये मेरा घर है, इसे जो है लायक इबादत बनना है, लायक मोहब्बत बनना है, लायक एहतराम है। तो 13 रजब को जब शहजादी आई, मैंने पहले कहा मुझे 13 रजब नहीं सुनानी, जिस वक्त शहजादी आई काले पत्थरों वाली दीवार पर मादरे मौले कायनात ने आकर हाथ रखा। मेरी तरफ देखते रहिएगा, मुझे गर्दन इधर उधर नहीं चाहिए। इधर हाथ रखा और उधर बीबी ने खुतबा दी, आवाज दी। अब खुतबे के लिए तो वक्त नहीं है, एक जुमला सुन ले आप कि परवरदिगारा मेरा तुझ पर भी ईमान है, तेरे रसूलों पर भी ईमान है, तेरे नबियों पर भी ईमान है, तेरी किताबों पर भी ईमान है। तो आगे क्या कहना था कि उस बेटे पर भी ईमान है। गर्दन तो हिला दे, मैं मुतमईन हो जाऊंगी कि बात जो है वो समझ में आ रही है। तो मेरे बेटे पर भी, लेकिन इसके बरस बीबी क्या फरमा रही है कि उस अमानत पर भी ईमान है जो मैं आज तुझे पहुंचाने आई हूँ। अमानत पर भी पहचान ईमान है जो मैं आज तुझे पहुंचाने आई हूँ। कौन? मादरे मौले कायनात शहजादी फातिमा बिनते असद। अब बीबी ने आकर सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद, बीबी ने आकर फरमा दिया ईमान है। जमाना कहता है कि जी काबे की दीवार फट गई, फटते तो कलेजे हैं। कब फटते हैं? जब कोई चीज बर्दाश्त नहीं होती। अब तो खामोशी आपकी बनती भी है, बात ही ऐसी है हाँ कि ये कलेजे कब फटते हैं? जब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। तो जी ख्वाब ने काबा की जी दीवार फट गई थी। कलेजे कब फटते हैं? जब फजाइल अली बर्दाश्त नहीं होते। आजकल कुछ इतने कमजोर कलेजे हो गए हैं 2023 में। मेरे बार बार इशारा कर रही हूँ मैं, माहौल खराब करने की मेरी बिल्कुल भी मेरा इरादा नहीं है। कुछ कलेजे इतने कमजोर हो गए कि उन्हें फजाइल अहले बैत भी बर्दाश्त नहीं होते और सुनना क्या चाहते हैं? चीनी पत्ती का भाव, झगड़े, फसाद, सब कुछ सुन लेंगे लेकिन फजाइल ना सुनेंगे। तो दुनिया कहती है कि खाने काबा की दीवार फट गई थी। दीवार फटी नहीं थी, न जाने कितनी हसीन खूबसूरत गुफ्तगू की थी मादर मौले कायनात ने कि दीवार खिलखिलाकर हंसने लगी। दीवार के लब खुले, बीबी अंदर दाखिल हो गई। कहते कि बीबी अंदर दाखिल हो गई। और जब अंदर दाखिल हुई तो किसी के पास अगर खजाना आ जाए, परदेश से सास की चोरी से अगर शोहर 10,000 अगले भेजते तो पूरा दिन ये लब जो है बंद नहीं रहते। अब ये हसीन देखे बड़े आम सी बात कर दी तो जल्दी से समझ में आ जाएगी। इसी तरह से जब खाने काबा को दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिला, मौले कायनात आए, अमीर कायनात आए, सिराते मुस्तकीम, फातिह खैबर, बारिश बदर, कुल्ले दीन, कुल्ले ईमान, साक़ी कौसर, जन्नत दोज़ख बांटने वाला, यासूबुद्दीन यानी कायनात का शहंशाह। और आसान कर दूं, काबे का काबा, हल्लाले मुश्किलात, फसलें उगाने वाला, सूरज पलटाने वाला, चांद को रोशनी देने वाला, मोहम्मद के बिस्तर पर मोहम्मद बनकर सोने वाला। जब इतना खजाना काबे को मिला तो आज तक दीवार मुस्कुराई रही। लेकिन ये मुस्कुराहट गवर्नर ऑफ मक्का को अच्छी नहीं लगी। बस यही सन्नाटा चाहिए था अगले जुमले के, शोर ना हो तो फिर कहना जो है वो बेईमानी हो जाएगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद। गवर्नर ऑफ मक्का को ये मुस्कुराहट अच्छी नहीं लगी। और वर्ल्ड जितने भी इंजीनियर्स की टीम थी, उन्होंने उसके जो एक टीम बनती है ना इंजीनियर्स की पूरे वर्ल्ड से, उसके हेड को उन्होंने बुलाया, एंगेज किया। और बुलाने के बाद खाने काबा बुलाया। वो दीवार का मौजू से नहीं हट रहे, हम वहीं आ रहे हैं। वो दीवार का जो है निशान दिखाया, लकीर दिखाई। वो लकीर दिखाई कि जिसके हम फकीर हैं, वो लकीर दिखाई। देखिए जाहिल बेवकूफ तो फर्शे पर आता ही नहीं है। और जब कोई पढ़ा लिखा हो और हक बात हो तो खामोश बैठता नहीं है। और मैं पहले कह चुकी हूँ कि मैं छोड़कर अमार जब तक जाऊंगी नहीं। आपकी सुभान अल्लाह में पर्स में तो भर कर ले जाऊंगी। मैं तो बैग भी नहीं लाई, पर्ची लेकर आई हूँ।
तो उसमें मैं भर कर लेकर नहीं जाऊंगी, आप ही की खबर में काम आएगा, आप ही के काम आएगा। और अब मैं झांक झांक कर चेहरे देखूंगी कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा। तो उस लकीर को कहा कि हम इसके फकीर हैं, जिसके हम फकीर हैं, ये अच्छी नहीं लग रही है, आप इसको जो है वो खत्म कर दें। लिहाजा केमिकल मंगाए, दांत मंगाए, भरी, रोलर फेर दिया। पलटे मुस्कुराकर कहा गवर्नर ऑफ मक्का से, बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात, लीजिए हमने लकीर मिटा दी। आप बेवजह परेशान हो रहे थे। गवर्नर ऑफ मक्का ने उनके चेहरे को देखा और देखने के बाद गवर्नर ऑफ मक्का ने कहा कि आप मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, जरा पीछे देखें, दीवार आपको देखकर मुस्कुरा रही है। अली मौला, 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 हाथ बुलंद करके अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, जगा डाला खाला ने सबको। और अगर अभी भी कोई सो रहा हो तो बराबर वाला को नहीं मार दे। जुमले मुझे ऐसे कहने, एक भी चेहरा खामोश नहीं बैठेगा कोई भी, क्योंकि जब तक बात हो रही थी, अब बात होगी मौला की। तो कहा कि ये देखे कि दीवार आपको देखकर मुस्कुरा रही है। पलटे, और पलटने के बाद कहा अच्छा वो ये जो धात हमने लगाई थी ये जरा सख्त पड़ गई, तो अब जो है वो जरा हमें सॉफ्ट वाली, मुलायम वाली जो इसमें है धात लगानी पड़ेगी। अब क्या करें, यहाँ भी इनकी किस्मत खराब। देखते रहिएगा मुझे आज कितनी देर यहाँ हूँ, उसके बाद देखिएगा या नहीं देखिएगा, तो आपकी मर्जी। तो कहा ये दुनिया की जो है सबसे नरम धात जो है वो है, यहाँ भी इनकी किस्मत खराब, वो है चांदी। आए समझ गए होंगे। अब कहा कि चांदी मंगवाई जाए, कम से कम क्विंटल मजों के हिसाब से चांदी मंगवा ली गई, पिघलाई गई, भरी गई, रोलर फेरते जाते हैं, उधर चांदी जाती है, चांदी साथ में दीवार के मुस्कुराती है। तवज्जो कीजिए, चांदी जाती है वो साथ में मुस्कुराती है, चांदी जाती है। आप तवज्जो नहीं कर रहे। बीवी जहरा को राजी करके भेजना है, मेरी क्या हैसियत औकात। तो जो चांदी जाती है वो मुस्कुराती जाती है। तो क्या अब ये जहालत की हद न हो गई? आपको इतना भी नहीं पता कि जहरा की कनीज को फिजा कहते हैं और फिजा की कनीज को चांदी कहते हैं। कनीज को चांदी कहते हैं, जिसकी कनीज की कनीज को चांदी कहते हैं, वो दीवार की लकीर। तो जो दीवार की लकीर ना मिटा पाए वो लकीर के फकीरों को क्या मिटा पाए? जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो जनाब ज़हरा दुनिया की सबसे बड़ी माँ, और ऐलान भी उसने किससे कराया? उस हस्ती से ऐलान करा रहा है जिसे अपना हबीब कह रहा है। और मौला की आवाज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल फातिमा तो बजतो मिन्नी। थके तो नहीं आप लोग? नहीं, सब नहीं कह रहे। कभी बाद में जाके कहीं ज़ाकरा बड़ी लंबी पड़ गई। नहीं, पहली बार हम हटाई तो उधर ही नहीं रही थी। इजाजत है सबकी 5 मिनट? हाँ, बढ़िया बढ़िया। सलामत रहे, सलामत रहे। जज़ाकल्लाह। तो मौला ने फरमाया अल फातिमा तो बजतो मिन्नी, फातिमा मेरा क्या है? टुकड़ा। टुकड़ा है। मौलवी साहिबान कहते हैं जी जिगर का टुकड़ा है। अल फातिमा तो बीबी का नाम। अब मैं मौलाना के घर में बैठकर बात भी करूंगी। बजा तो टुकड़ा मिन्नी, न दिल न जिगर न फेफड़े, कुछ भी नहीं है। मौला ने फरमाया मेरा टुकड़ा है, मैं रसूल हूँ तो रिसालत का, मैं नबी हूँ तो नबूवत का। बोलिए, मैं नबी हूँ तो नबूवत का टुकड़ा, रसूल हूँ तो रिसालत का टुकड़ा। और एक जुमला कह दूं बेईमान के लिए इंसाफ भी हो जाएगा। वो जो था वो, लेकिन जो मुझे जानता है उसे तो पता है कि वो कौन है।
जो नहीं जानता वो जरा इशारे से समझने की कोशिश करे, क्यों कि जिससे मोहब्बत होती है उसके इशारे भी समझ आते हैं। वो बेईमान कि अगर मैं रसूल हूँ तो रिसालत का टुकड़ा है, अगर मैं ताहिर हूँ तो वो ताहिरा है, अगर मैं सिद्दीक हूँ तो वो सिद्दीका है, अगर मैं सिद्दीक हूँ तो वो सिद्दीका है। तो उधर से अगर चले तो बेटा मुआविया मिला या यजीद मिला, और इधर से अगर सिद्दीका से चले तो बेटा हसन मिला। तवज्जो 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 कीजिएगा, या फिर हुसैन मिला। क्यों कि माँ में फर्क था। एक को नबी दीन बचाने के लिए मुबाहला में लाए, दूसरी को आने से भी रोका तो वो मैदान में आ जाए। दूसरे बस बिल्कुल मैं मंजिल के करीब हूँ, दूसरी मैदान में आ जाए तो माँ में भी फर्क था। अब जो डर जाए उससे मुझे कोई मसला नहीं है, जो बेखौफ हो वो मेरे साथ बोले। तो ये मैं ताहिर तो वो ताहिरा, मैं सिद्दीक तो वो सिद्दीका, मैं सिद्दीक तो वो सिद्दीका। तो कोई नोट देकर वोट लेकर, इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन का घर घर बट रहा होगा सामान। अब यहाँ नहीं पता, हमारे यहाँ बहुत चल रहा है। क्या नमाज है, लो डिनर सेट लीजिए, आप टी सेट लीजिए, आप लेमन सेट लीजिए, वोट हमें दे दीजिए। उसी का नतीजा कि कोई नोट देकर वोट लेकर नाम के आगे सिद्दीक लिखवा ले। नहीं बोल रहे आप। नोट देकर वोट लेकर सिद्दीक लिखवा ले, वो और होता है। क्यों कि कमजर्फ लोग साहिब तखलीक बन गए, खुद आप अपने जहन की तस्दीक बन गए, और जहनों के इनकलाब का फितना तो देखिए, हक फातिमा का छीन के सिद्दीक बन गए। कोई नोट देकर और वोट लेकर बन जाए सिद्दीक, वो और होता है। जो जबान से कह दे और अल्लाह पूरा कर दे, वो और होता है। बस आखिरी जुमले, बीवी ने मौला आए और आकर इमाम ने फरमाया अम्मा सुबह ईद है, कपड़े नहीं है। क्या इमाम को जरूरत थी? जिनके दर्जी अर्श वाले हो, जिनकी हुकूमत अर्श पर हो, क्या उन्हें कहने की जरूरत थी कि अम्मा सुबह ईद है, कपड़े नहीं है? इन्हें बताने के लिए नहीं बताने, गलत हो गया। थोड़ा आइडिया तो मुझे भी है, वो इन्हें बताने के लिए, इन्हें समझाने के लिए अम्मा सुबह ईद है, कपड़े नहीं है। बीबी ने फरमाया हसन सुबह होने से पहले दर्जी ले आएगा। हमने कहा शहजादी सिलाई के लिए आपने दिए नहीं, सिद्दीक आप हैं। तो आवाज आएगी तंजीम खामोश, पहले हम अर्शी का मुताला करते हैं, लोहे महफूज पर देखते हैं। जब हमने देखा कि अल्लाह हुक्म दे रहा था रिजवान जन्नत, जन्नत छोड़ दो, हसन हुसैन के दर्जी बन जाओ। बात आ गई। तो जो कहते हैं जबान से और अल्लाह पूरा कर दे, उसको सिद्दीका कहते हैं। तो हमने कहा शहजादी वहां से तो यहाँ कुछ आता नहीं। आखिरी जुमला है और मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं कि जो ना बोल पाए। आप इस जुमले पर, वहां से यहाँ कुछ आता नहीं, कपड़े सिलाई को गए नहीं, तो जवाब आएगा वहीं से तो यहाँ सब आता है। तवज्जो, वहीं से तो यहाँ सब आता है। देखा बीबी वहां से तो यहाँ कुछ नहीं आता, तो अजब नहीं कि मेरी शहजादी फरमाए कि अजब नहीं कि मेरे किसने लिखा है मुझे ये नहीं पता कि वहां की चीजें यहाँ पे उतरे, आज से ही रस्म डाल दूंगी। जो ना बोल पाए वो गर्दन हिलाए, जो ना बोल पाए वो गर्दन हिलाए, कि वहां की चीजें यहाँ पे उतरे, आज से ये रस्म डाल दूंगी, और सुबह से पहले जो आया न दर्जी तो नौकरी से निकाल दूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिसके दर्जी भी अर्श वाले हो, उस बीबी का नाम है जहरा। तो मौला ने फरमाया आखिरी मेरा जुमला है, उसके बाद मसाहिब की मंजिल। अगर थक नहीं रहे हो तो मैं जुमला छोड़ देती हूँ और मसाहिब की मंजिल कह दूं आखिरी जुमला। तो अजब नहीं कि मेरे बीबी फरमाए, तो ये जमाने को पैगामी तो दिया कि जो मैं हूँ वही जहरा है। तो रोज़े महशर जब अल्लाह के सामने जाओगे आमाल गले में डाल के, तो परवरदिगार पूछेगा, क्योंकि एक टुकड़ा है, मौला का टुकड़ा है, और आप रोटी के टुकड़े कर ले तो जायका और तासीर नहीं बदलती। नोट के टुकड़े कर ले आप, नोट के टुकड़े कर ले वो तो चलेगा नहीं, लेकिन रोटी के कर दे चाहिए
एक नोट के अगर 2 टुकड़े कर लिए जाएं और आधा नोट एक बच्चे को दे दें, आधा नोट दूसरे बच्चे को, मेरे साथ रहिएगा वरना तकरीर बढ़ा दूंगी फिर। हाँ, डराना मेरा मकसद नहीं है, ना गन पॉइंट पे मुझे दाद चाहिए किसी से। तो ये एक नोट के 2 टुकड़े, एक आधा बच्चे को और 2 दुकानदारों के पास आप भेज दें। जब बच्चा आधा टुकड़ा लेकर जाएगा तो क्या सोचेगा दुकानदार? या तो पागल है या फिर बेईमान है। तो जब आधे टुकड़े से दुनिया में काम नहीं चलता, आखिरी जुमला है ये, जब आधे टुकड़े से दुनिया में काम नहीं चलता तो बेगैर तो जब रोजे महशर पहुंचोगे अल्लाह के पास और अल्लाह पूछेगा कि मोहम्मद की मोहब्बत थी जी, फिर पूछेगा ज़हरा की मोहब्बत थी। अब इससे ज्यादा मैं आसान नहीं कर सकती। ज़हरा की मोहब्बत थी नहीं थी। तो ये दुकानदार है जो नोट का आधा टुकड़ा देखकर सोच रहा है ये पागल है या बेईमान है। वो अला कुल्ली शैइन कदीर है और रहमान और रहीम है और रब्बुल आलमीन है। वो सोचेगा नहीं, उठाकर ये कहकर दोज़ख में फेंक देगा या तो पागल है या फिर बेईमान है, बगैर ज़हरा की मोहब्बत के। क्योंकि माँ नस्लें देकर जाती है और उससे ज्यादा खुश नसीब माँ नहीं जो आज दुनिया से चली है। क्यों? कि उससे ज्यादा खुश नसीब माँ नहीं जो जमाने को ऐसी बेटी दे जाए जो जिक्र ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा करती है। उससे ज्यादा खुश नसीब माँ नहीं कि जिसकी औलाद माँ के जाने के बाद भी फर्श अज़ा बिछाए, जिसकी औलाद माँ के जाने के बाद जिक्र ज़हरा कराए। उस माँ से ज्यादा खुश नसीब माँ नहीं कि जिसकी बेटी खुद गुर्बत अहले बैत बयान कर। ये तो दोहरा सवाब उस माँ के लिए। तो जब तक बेटी जिक्र करती रहेगी तब तक सवाब जारिया रहेगा। जो करबला की ज़ियारत करके चली जाए वो भी खुश नसीब। और यकीन, हालांकि मेरी कोई न मुलाकात मुझे नहीं पता, लेकिन इतना है कि आपकी आमद, आपके चेहरे बता रहे हैं कि मरने वाले का किरदार क्या था। तो गुर्बत में औलाद को ऐश देकर जाए उसे माँ कहते हैं। माँ अगर 100 साल की भी हो जाए, अभी हमारा भाभी का और मेरा जिक्र चल रहा था कि दुनिया से जाने से पहले मरहुमा गिरी, पसलियों में चोट लगी, तो टूटी हुई पसलियों वाली माँ को उन्होंने याद किया। और ये बेटियों का भी यकीन, हम सब आने वालों का भी यकीन कि जब पसलियों में बेशक जख्म लगा होगा तो मादर हुसैन याद आएगा। ये यकीन है कि अल्लाह मादर हुसैन के कदमों में उन्हें जगह इनायत फरमाए और जाने जाने में अगर कोई गुनाह कबीरा सगीरा होगा तो उसको माफ कर दे। आखिरी जुमला दरबार का सुन ले, सबसे ज्यादा गम शहजादी को दरबार जाने का। मुझसे मेरी बहन, मैं भाभी कहूँ, बहन कहूँ, कोई भी रिश्ता समझ ले, जो इस वक्त उन्होंने मुझसे कहा ना कि शहजादी के मसाइब मेरी माँ को बहुत पसंद थे, मेरा दिल चाहा कि मैं दरबार का एक जुमला आपके दरमियान में पढ़ूं। शहजादी ने 28 सफर को नबियों के सुल्तान दुनिया से गए, उसके बाद ज़हरा हक मांगने दरबार गए। 1 रबीउल अव्वल को लानतियों ने आकर दरवाजा बीबी पर गिरा दिया। रोने की आवाजें बुलंद हो रही है, अभी तो क़यामत हो जाएगी। मैंने कुछ कहा भी नहीं। मुझे फिर कभी मौका मिला तो मैं बीबी का खुतबा आपको दरबार में जरूर सुनाऊंगी, लेकिन आज एक जुमला सुनिए। जो उस वक्त के रूल्स है ना गवर्नमेंट के, सब फॉलो किए मेरी शहजादी ने। जो कानून थे उस वक्त की सरकार के, सबको माना। मिंबर से आप सुनती हैं कि 4 घंटे खड़ी रही, इतनी देर खड़ी रही कि पैरों पर वहम आ गया। इतनी देर खड़ी रही कि पैरों पर वहम आ गया। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, इतनी देर के पैरों पर वहम आ गया। जब खड़ा नहीं हुआ गया तो जालिम से कहने लगी, अगर तेरी इजाजत हो तो बैठ जाएगा।
इजाजत हो, सिलानती से पूछ रही है बीबी, अगर तेरी इजाजत हो तो बैठ जाए जहरा। सबसे ज्यादा हम दरबार में आने का, देखिए दिल भर के रोएंगे आप। हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं कि जहाँ मैंने खिताब न किया हो, हिंदुस्तान के बाहर भी। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में गुजराती में, फारसी में, इंग्लिश में, न जाने कितनी जबानों में मजलिसें सुनी, लेकिन एक मसाइब ऐसे है जिसमें सबसे ज्यादा गिरिया होता है। कुछ बरस पहले जब मैंने पंजाब में वो मसाइब पढ़े तो एक मेरी हम उम्र मेरी बहन ने आकर मेरे पैरों में सर रख दिया था, मुझे माफ कीजिएगा, और मुझसे कहा था एक लफ्ज और न पढ़ना नहीं मैं मर जाऊँ। और वो मसाइब थे शहजादे अली अकबर के। पढ़ने नहीं है मुझे, सुन नहीं जाते। तो मैंने उससे पूछा था बाद में मजलिस के कि ऐसी क्या वजह है, तो कहा कि 18 बरस का जवान बेटा था। अब आप मुझे ये बताएं कि वो भी तो नबी की 18 बरस की जवान बेटी थी जो दरबार जाकर ज़ईफ़ हो गई थी, चेहरे पर झुर्री आ गई थी, सर के बाल सफेद हो गए थे, कमर झुक गई थी। 18 बरस की उम्र में सहाबी के दरबार में नबी की बेटी ज़ईफ़ हो गई। खुदा कोई खबर नहीं सिवाय हमें मजलूम है ना पड़ा। 18 बरस की उम्र में नबी की बेटी ज़ईफ़ हो गई। क्या इतना कह देना काफी नहीं है कि सरों को पीट कर लो? 18 बरस की उम्र में आपने किसी माँ को ज़ईफ़ होते हुए देखा? 18 बरस की उम्र में कोई माँ देखी है जो ज़ईफ़ हो गई? मुझे नहीं पता कि कैसे दरबार से वापस आई, लेकिन जब वापस आई तो सामने मेरी बहनें बैठी हुई हैं, जो यतीम बहनें मेरी बैठी हुई है ना, उनके लिए जुमला है, शायद इनके दिलों को सब्र आ जाए। जा जा बेटी, एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखना, शायद सब्र आ जाए दिलों को, इसलिए कि माँ तो बस माँ होती है। और शायद जनाब रजा सिलसिले साहब लिखते हैं कि जिंदगी कैसे गुजरती है रजा माँ के बगैर, ये तो बस वही बता सकता है जिसकी माँ न हो। सारे रिश्तेदारों के होते हुए घर यूं लगे जैसे हो सारी किताबें घर में बस कुरान न हो। 4 घंटे दरबार, वापस घर आई तो कदम उठाती हुई झुकी हुई कमर के साथ अपनी मसनद की तरफ चली, तो जमाना कहता है कि जनाब ज़ैनब माँ को पहचानी नहीं थी। जितनी बेटियां बैठी है, मैं एक सवाल करूं आपसे, बेटियां माओ को तो अंधेरे में पहचाना, और ज़हरा जैसी माँ को ज़ैनब ने पहचाना। करीब गई, जब देखा माँ की मसनद पे बैठते हुए तो आवाज दी, बीबी मेरी माँ दरबार गई है। बीबी मेरे घर का कोई भी कोना कहे वैसा ही सजा दूंगी, अम्मा दरबार गई है, अम्मा दरबार गई है। शहजादी ने आहिस्ता आहिस्ता सर बुलंद किया, चेहरे से चादर हटाई और आवाज देकर कहा, ज़ैनब क्या दरबार जाकर माँ इतनी गरीब हो जाती है, उन्हें बेटियां नहीं पहचानती? तो रो के जनाब ज़ैनब सीने से माँ के लग गई और आवाज देकर कहा, अम्मा पहचान लिया था, मैं दुआ कर रही थी, ऐ परवरदिगारा 18 बरस की ज़ईफ़ माँ नहीं होती। मरहबा मरहबा
ज़ियारत करके आ चुका है उसे पता होगा जो नहीं गया परवरदिगार इस फरशा का वास्ता उसे जल्द से जल्द ज़ियारत करबला नसीब फरमा, ज़ियारत मदीना नसीब फरमा। ऐ मेरे मालिक, मौत आने से पहले हम सबको ज़वारी माफ बना दे। सुन पाएंगे और बर्दाश्त कर पाएंगे, जो नहीं रो पा रहा हो एक लम्हे के लिए मेरी तरफ से। सामने दरवाजा था, जहाँ जहाँ मैं नजर आ रही हूँ मुझे देखिए, जिस तरफ से भी मैं नजर आ रही हूँ। सामने दरवाजा था, उसके सामने दीवार, दाहिनी तरफ दीवार, ये था मौला का घर। पढ़ते का एहतमाम दीवार और दरवाजे के दरमियान में जर्रा खड़ी दीवार और दरवाजे के सामने करीब माँ खड़ी थी। और ये जो आधे से ज्यादा मदीना जमा हो के बीबी के दरवाजे पर आए थे ना, ये खाली हाथ नहीं आए थे, किसी के हाथ में थी सैली। सैली कहते हैं इतना बड़ा सरिया अरब में होता है, उसकी चोट अलहदा होती है। कोई ताजियाना लेकर आया था, कोई डंडे लेकर आया था, कोई हाथ में आग लेकर आया। हाँ, रोते रहो, लगना चाहिए कि जनाब ज़ैनब की यतीमी का मातम है, लगना चाहिए कि इमाम मज़लूम की यतीमी का मातम है। बीच में ज़हरा, सामने दरवाजा, पीछे दीवार। एक बेगैरत इब्ने बेगैरत ने लानती कुल्फुस को इशारा किया, उसने जलता हुआ दरवाजा ज़हरा पर गिराया। जैसे ही जलता हुआ दरवाजा गिरा, बीबी की आवाज आई, या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद, मेरे मौसिल की खैर। यही हासिल होने का, इसी अंदाज में यही हासिल होने का। सीनों से मातम की सदाएं आनी चाहिए। ये जो बेटियां बैठी हैं, सब अपनी अपनी माँ के लिए दुआ कीजिए। परवरदिगार, सबसे पहले कोई बेटी यतीम ना हो, अपने अपनी माँ के लिए दुआ कीजिए। नीचे ज़हरा, ऊपर जलता हुआ दरवाजा, आवाज़ आई, या अली मेरे मोहसिन की खैर हो। ये जितने भी यतीम हैं, ये खुश नसीब है कि इन्हें रिश्तेदार संभाल ले। खुदा किसी तलाश कर ये वक्त न लाए कि जलते हुए दरवाजे के चारों कोनों पर चारों बच्चे आ गए। एक तरफ ज़ैनब आ गई, दूसरी तरफ कुलसूम आ गई, एक तरफ इमाम हुसैन आ गए। जहाँ जहाँ मेरी आवाज आ रही है, एक तरफ इमाम हुसैन आ गए। अब चारों बच्चों ने मिलकर जलता हुआ दरवाजा उठाना चाहा। जब जलता हुआ दरवाजा न उठा, तो एक मर्तबा इमाम हुसैन ने रोकर कहा, माँ, हमसे ये जलता हुआ दरवाजा नहीं उठा। मातम करो, मातम। आवाज दी, अम्मा, हमसे ये जलता हुआ दरवाजा नहीं उठा। मुझे नहीं पता कैसे ज़हरा बाहर आई, मुझे नहीं पता कि कैसे माँ बाहर आई, लेकिन जब बीबी बाहर आई तो एक हाथ टूटी हुई पसलियों पर, दूसरे हाथ से इमाम हुसैन को सीने से लगाया और सीने से लगाकर आवाज दी, ए हुसैन, सब रोए तुम न रोना। हाँ, ये अंदाज होना चाहिए, ये अंदाज होना चाहिए रोने का, ये अंदाज होना चाहिए मोहब्बत करने का। आवाज आई, हुसैन, सब रोए मगर आप न रोना, मेरी जान आप न रोना, इसलिए कि मेरी गुर्बत से बड़ा आपकी गुर्बत का दिन होगा कि जहाँ पे आप 71 जनाजों पे रोगे, कभी अकबर का जनाजा उठा के रोगे, कभी अली अब्बास के बाजू उठा के रोगे। ऐसा रोके रहो, ऐसी रो, सब नहीं पता कैसे माँ दरवाजे के बाहर आई। मैं नहीं जानती कि बीबी की पसलियाँ टूट गई, हाथ दाहिना बीबी की पसलियों पर, और बेटे ने सहारा जनाबे फिजा ने दरवाजे से जब बाहर निकाला तो अपना हम भूल कर पहला सवाल बीबी ज़हरा ने किया, अली कहाँ है? पहला सवाल
आवाज आई, बीबी अली को मुसलमान गले में रस्सियां डालकर मदीने की गलियों में ले गए। जैसे ही ज़हरा ने सुना, अपना गम भूल गई, अपनी तकलीफ भूल गई ज़हरा। और ड्योढ़ी के बाहर कदम रखा तो क्या देखा कि सामने मुसलमान है, अली के गले में रस्सियां हैं, सामने मुसलमान है। एक मर्तबा बीबी की आवाज आई, या अली मैं अपने बाल परेशान कर दूंगी। मौला ने आवाज देकर कहा, ज़हरा क़यामत आ जाएगी। ज़हरा मस्जिद नबी की आवाज दरवाजे बुलंद होने लगी, ज़हरा से आंखें आने लगी, ज़हरा क़यामत आ जाएगी। यकीन करें आप, किसी ज़ाकिर की हैसियत का हाल नहीं कि वो जनाब ज़हरा के मसाइब पढ़ दे, किसी की का हौसला नहीं कि वो सुन पाए। अब मैं इतना कह रही हूँ, गुजारिश हाजियों के रब से कि ये ज़ैनब और कुलसूम की पहली शाम गरीबा थी। जब अली के दरवाजे को जला दिया गया, घर की दीवार को छत से मिला दिया गया, और वो गुर्बत का आलम कि मर गई हुसैन की माँ, हो गई ज़ैनब यतीम। ये जो सामने मेरी बेटियां बैठी हैं, इनसे एक सवाल करो कि जब किसी की माँ मर जाती है, जब किसी की माँ मर जाती है तो क्या होता है? पहले होता है गुस्ल कफन। जो समझ जाए वो सीने पर हाथ मार कर, इसलिए कि बेटियों को माँ बड़ी प्यारी होती है। आज कोई आए ना आया, शाम वाली बेटी जरूर है। आज टूटी हुई पसली वाली माँ को पुरसा लेने आए। उस बीवी की गुर्बत पर रो रहे हैं जिसकी कब्र पर आज तक साया नहीं है, जिसे मुसलमानों ने वादे शहादत भी चैन न लेने दिया। उस बीवी की गुर्बत का पुरसा दे रहे हैं। मर गई ज़ैनब की माँ, हो गई कुलसूम यतीम, हो गए इमाम हुसैन यतीम। और जब किसी की माँ मर जाती आखिरी जुमले तो पहले उसका गुस्ल कफन होता है। अली का घर था, बीबी का हुजरा था, खुदा किसी यतीम पर ये वक्त न लाए कि बच्चे पहरा दे रहे थे, इमाम हुजरे में गुस्ल दे रहे थे। एक मर्तबा किसी की चीख मार कर जमीन पर गिरने की आवाज आई, इमाम हसन ने तलवार फेंकी। दौड़ कर जब इमाम हसन हुजरे में पहुंचे तो क्या देखा कि फातह खैबर खाक पर बैठे हुए चीख मार कर रो रहे हैं। इमाम ने बाबा से पूछा, बाबा ये कौन गिर गया? आवाज आई, मैं अली। बीबी आपके पुरसे आवाज आई, मैं अली। कहा बाबा जो फातह खैबर है वो खाक पर बैठ कर रोए। कहा हसन आपकी माँ के पहलू में जो जख्म देखा, मैं अली उसकी ताब न ला सका। इमाम ने पानी उठाया, बीबी के जख्मों पर डालना चाहा। एक मर्तबा बीबी के लाभी आवाज आई, अली मेरे जख्मों पे पानी न डालना, या अली मेरे जख्मों पे पानी न डालना। मैं बाबा को जाकर अपने जख्म दिखाऊंगी। मैं बाबा से कहूंगी कि बाबा आपके बाद मुसलमानों ने ये जजा दी। हो गया मसाला, हो गया मसाला। ये नूर बता रहा है कि मरहूमा की मग़फ़िरत की जो हम दुआ कर रहे हैं ना, उसकी कबूलियत का वक्त। ये गिरिया, ये नूर, ये फर्शादा ये बता रहा है कि मजलिस की कबूलियत का वक्त है। आप भी अपने दिल में मरहूमा के लिए दुआ कीजिएगा कि वो चाहने वाली माँ दुनिया से चली गई और इससे ज़्यादा एक लफ्ज़ मुझे नहीं पढ़ना। जब गुस्ल कफन हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि माँ के जनाजे को घर के सहन में ला के रख देते हैं। मैं हाथ जोड़कर कह रही हूँ, दिल दुखाना मेरा मकसद नहीं है, बस वो मंजर दिखाना मेरा मकसद है कि जब माँ मर जाती है गुस्ल कफन के बाद जनाजे को तैयार करके घर के सहन में रख देते हैं। अली के घर का सहन था, ज़हरा का जनाजा था। हमारे यहाँ रिश्तेदार बुलाते हैं बच्चों को, आखिरी मर्तबा माँ के चेहरे का दीदार कर लो, ये अब माँ दोबारा न मिलेगी। अली की आवाज आई, ए हसन हुसैन, ए ज़ैनब और कुलसूम, आखिरी मर्तबा माँ के चेहरे की ज़ियारत कर ले, ये चाहने वाली माँ दोबारा न मिलेगी। कनीज़ाने ज़हरा दो बच्चे आ गए, दो नहीं आए। इससे ज़्यादा एक लफ्ज़ नहीं पढ़ना मुझे। ये तारीख गवाह है कि दो बच्चे आए, दो नहीं आए। हसन भी आ गए, कुलसूम भी आ गए, न तो ज़ैनब आई। मेरा दिल लग रहा है, मैं कैसे कहूँ।
आए ना ज़ैनब आई। अल्लाह मुझे ताकत दे कि मैं अगले जुमले पढ़ जाऊं। माँ सबको प्यारी होती है, माँ सबको प्यारी होती है। अल्लाह करे मैं पढ़ जाऊं, मैं खुद कह रही हूँ मैं पढ़ जाऊं कि 2 बच्चे आ गए, 2 नहीं आए, ना तो हुसैन आए ना ज़ैनब आई। इमाम ने रोकर कहा बेटा हुसैन के आखिरी मरतबा